बायो चाहिए तो मुझे फोन करने का, ठीक है। बायो का लेक्चर अरेंज हो जाएगा। कुछ जो नहीं समझता है, मैं केमिस्ट्री का पूरा रिवीजन दे रहा हूं। हेलोजन डेरिवेटिव चालू किया है अभी क्षितिज, ओके। ओए हाँ, प्रतीक सर भी कुछ एक चैप्टर चालू करते हैं। जिसको जिसको आना है वो आने का बिंदास। अलग अलग दूर दूर बैठने का, मास्क पहनने का, सैनिटाइजर हाथ में लाने का, थोड़ा हैंड पॉकेट वाला सैनिटाइजर, ओके। चलो भाई, थर्मोडायनामिक्स क्या बताता है? थर्मोडायनामिक्स ऑल अबाउट हीट चेंजेस। फटाफट बोलते जाओ यश। फिर क्या बताता है ये? शुरुआत और एंड का स्टेज का ही हीट चेंज बताता है। बीच में क्या हुआ वो बताता नहीं है। फिर स्पीड नहीं बताता है। हीट चेंजेस का एक्सपेरिमेंट करना है तो क्वांटिटी में रिएक्टेंट लाना पड़ेगा। इट्स मैक्रोस्कोपिक गाइस। आगे thermodynamics only know the two people who are there, सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग। पूरा यूनिवर्स ही उसका दो ही चीज से भरा हुआ है। यूनिवर्स इक्वल्स टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम तीन टाइप के होते हैं, open, closed and isolated, right? Open means you can exchange both matter as well as energy. Closed means you can only exchange energy, you cannot exchange matter. Isolated, you can't exchange either matter, you can't exchange or energy, right? Next, properties of system. Two properties, extensive and intensive. Extensive means the property of magnitude depends upon the matter. हाँ क्या? whose magnitude depends upon amount of matter. Very good. थोड़ा जोर से है। हाँ सर, सॉरी। ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, बोलिए। फिर इंटेंसिव मींस whose magnitude does not depend upon the matter. magnitude does not depend upon matter. Very good. ओके ओके, चलो अभी बहुत सारे प्रॉपर्टी फिर क्लासिफाई किया है वो सब आप देखिए। मेन आगे और बढ़ता है स्टेट, स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। फास्ट, व्हाट इज स्टेट वेरिएबल? measurable properties, measurable properties. State, values of state variable. जो स्टेट वेरिएबल को वैल्यूज मिलेगी, वैल्यूज जैसे चेंज होते जाएगी, we'll say that system is changing the state, right? Next, state function. If the properties is measured on a particular current state, then it's called a state function. If the property is measured in the path, then it's called as path function. Am I clear, guys? Yes or no? It's clear. Yeah. चलो, तो पाथ फंक्शन सिर्फ दो ही है पूरे थर्मोडायनेमिक्स में। कौन सी? Work and heat. Work and heat. Great. Rest all are the state function. तो don't confuse in entrance, हाँ। सिर्फ वर्क और हीट ही पाथ फंक्शन है, बहुत बार बोला है मैंने। नेक्स्ट, चलो भाई, processes. There are reactant से प्रोडक्ट जाने के लिए we have many processes. First of all, isothermal. Temperature constant. Temperature remains constant. Delta T equals to 0. उसका भाई internal energy का change is also 0, right? Yes. Isocoric, correct. Volume remains constant. वाह, delta V equals to 0. Work 0. Work, वॉल्यूम चेंज नहीं, वर्क नहीं। वॉल्यूम चेंज तो ही वर्क। याद आया? आगे आइसोबैरिक, बैरिक, डेल्टा P equals delta P 0. Yes. आगे adiabatic process. No heat exchange. No heat exchange. No heat exchange. इंसुलेटर लगाया हुआ है, हीट एक्सचेंज कहाँ से होगा? राइट? Yes. Q0. Yes, very good.
That's very good enough, guys. You are doing really very good. Now, we're going towards reversible process. जो process The process which can be reversed on putting heat on weight on them. does maximum work. नहीं मजा आया और अच्छे से मेरे को आंसर चाहिए. Sir, more steps is required. और बाद में does more work and more energy is required to reverse it. नहीं. So sorry. लास्ट वाला पॉइंट रॉन्ग है. वापस बोलो लास्ट वाला पॉइंट. Difference between P internal and More energy is used. क्या? More energy नहीं लगती, वेट थोड़ा सा ज्यादा तो रिवर्स हो सकता है. हाँ, वेट थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड था कि थोड़ा सा भी ऑपोजिंग फोर्स लगाया, the process immediately reversed. The force between internal force and external force is very minimum. एक्सटर्नल फोर्स थोड़ा सा बढ़ा दिया, ओपोज हो गया. इंटरनल फोर्स थोड़ा सा बढ़ा है, थोड़ा करके बढ़ रहा है. Am I clear? Yes, sir. yes क्या? sir. थोड़ा करके बढ़ा, थोड़ा करके नीचे आया है. राइट एवरीवन? yes. ग्रेट. Yes. Yes, sir. ग्रेट. चलो तो भाई इरिवर्सिबल प्रोसेस उल्टा, फटाक से ऊपर, फटाक से नीचे. Requires maximum force to reverse it. minimum work. Require, very good. Require maximum force to reverse it. Very good. Minimum work. Very good. फिर क्या बोल रहे थे यश? बोलो भाई. वही यश ने मिनिमम ये बोला. ओके. अभी आगे देखो आप भाई, क्लियर कट बोला था मैंने. वॉल्यूम चेंज होगा तो ही वर्क होगा. आगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स को रिप्लेस किया मैंने. देखो उधर देखो फॉर्मूला है. प्रेशर is nothing but force per unit area. So force is nothing guys, pressure into area, right? So force Yes. को मैंने replace किया pressure into area से, area into displacement को replace किया मैंने change of volume से. फिर external pressure क्यों लिया? External pressure क्यों लिया? External pressure is constant. Constant. Yes. और internal pressure हम लोग measure कर सकते हाँ. नहीं है, फटाक से ऊपर आ रहा है. Am I clear? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So minus sign क्यों लगा आगे? Minus sign. In opposite direction. Opposite direction. opposite direction में. वाह, Opposite direction. अरे क्या बात है. चलो पॉजिटिव वर्क मतलब स्लाइड देखो दिया है सब. गौरव फटफट. पॉजिटिव मतलब Surrounding Surrounding is working on system. System is working on surrounding. सराउंडिंग इज वर्किंग ऑन सिस्टम. पॉजिटिव वर्क मतलब System gain सराउंडिंग कर रहा वर्क कर रहा है. And compression. सिस्टम गेन And कर रहा है compress. एनर्जी. एंड यस इट्स कंप्रेशन. वेरी गुड गाइस. Yes. आर्य जी कुछ तो बोलो आज, कुछ तो. क्षितिज जी आगे. नेगेटिव वर्क मतलब Compress energy. System is working. yes, expansion. System is doing work. System releases the energy guys. जो work करेगा वो release करेगा energy. Yeah. फिर ये सब internal energy denoted by capital U depends upon lots of factor. You know, internal energy summation of kinetic energy plus potential energy. There are lots of factor on kinetic energy, potential energy. बहुत सारे factor पे dependent है. Final conclusion क्या है guys? We cannot calculate the magnitude. Calculate the We magnitude. cannot calculate exact value of internal energy. Internal energy. Yes. Hence हम लोग क्या लाए खुशी जी? हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लाए Thermodynamics. जिसने अमेजिंग किया. काम किया. क्या? चेंज इन एनर्जी को कैलकुलेट किया. चेंज इन एनर्जी को कैलकुलेट किया ऑन द बेसिस ऑफ टू पाथ फंक्शन, दैट इज पाथ एंड Work and heat. वर्क एंड हेट. वर्क एंड So हीट. hence first law of thermodynamics का फॉर्मूला गाइस Q plus W. Q plus W. Q plus W. शोभा कम ऑन आंसर चाहिए. खुशी, शहबाज आगे. प्री एक्सपांशन वर्ड देख के वर्क जीरो. क्यू वर्क जीरो.
तो वैक्यूम आता है ना। No external force. नो एक्सटर्नल फोर्स, दैट्स द राइट आंसर गाइस। आगे ये कहानी बार बार लास्ट टाइम भी रिपीट की थी, ये टाइम बोलना मत रिपीट करने को, पहले बोल रहा हूं। राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे ओमकार, नीचे 8 है, ऊपर 5 है, हाँ बट 8 हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं है, इसलिए हमने 5 ले लिया। 5 लेके वर्क कैलकुलेट किया, मिनिमम वर्क। बट लेफ्ट, सॉरी अभी ये राइट है, हाँ लेफ्ट हैंड साइड पे एक स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। हर एक स्टेप के बाद बहुत बार रुक रहा है, तो हम लोग आराम से इंटरनल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली बार 8, सेकंड बार 7, फिर 6, 5, ऐसे कर करके हम लोग ने वर्क कैलकुलेट किया। 8, 7 हायर वैल्यू से वर्क कैलकुलेट किया, हेंस वी गेट मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क क्यों मिला, समझा? हाँ सर। Yes, sir. ओके अभी डेरिवेशन सर आपने बोला था ना इसमें जो लास्ट तक करता है उसको लेना पड़ता है अपने, जो स्लो करता है। सॉरी कम अगेन। आपने बोला था ना कि वो उसको ही काउंट करना पड़ता है जो लास्ट में रहता है, मतलब तो वो केमिकल काइनेटिक्स का मिक्स कर रहा है वो लास्ट हाँ स्लोएस्ट वाले का। हाँ तो सर ने इधर बताया था ना वो क्लियर करो ना उसको, आपको समझा दो। हाँ अरे वो लास्ट स्टेप का जो तू बोल रहा केमिकल काइनेटिक्स में था, जो स्लोएस्ट वाला फिर ही उसको लेते हैं रिएक्शन में। इसमें वो हर एक स्टेप का इक्वली करना है। ओके, इंडिविजुअल वर्क हर एक स्टेप का कैलकुलेट करना है वर्क। उधर इंटरनल प्रेशर वेरिएबल है, हम लोग को बार बार मेजर करना है। इंटरनल प्रेशर वेरिएबल है, हमें बार बार कैलकुलेट करना है, समझा? हाँ सर ओके। आगे चलो, तो भाई डेरिवेशन, थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा प्रेशर बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा है। V1 से V2 तक ऊपर आना है टोटल। बहुत छोटा छोटा वर्क हुआ, सारे वर्क को कैलकुलेट करना है, छोटे छोटे वर्क को। वापिस डेरिवेशन याद करवा रहा हूं, याद हो जाना चाहिए, अभी एग्जाम में प्रॉपर लिखने को आना चाहिए प्रॉपर। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस डेरिवेशन। चलो इससे चालू किया मैंने, आर्या वर्क इक्वल्स टू माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा वी, राइट? Yes. आपको पता है इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर में एकदम थोड़ा सा फर्क है, एकदम थोड़ा सा। इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर में थोड़ा सा फर्क है, राइट? देखो मैंने दोनों क्या किया, एक्सटर्नल प्रेशर को उधर लेके आया, डेल्टा पी को इधर लेके आया, एंड सिंपली एक्सटर्नल प्रेशर को रिप्लेस किया फॉर्मूला में। यू नो ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है आपको? ऊपर मैंने रिप्लेस किया क्या, जरा देखो, इंटरनल प्रेशर माइनस डेल्टा पी से, समझा कुछ? Yes, sir. फिर सिंपल मैथ्स है, ओपन करो ब्रैकेट, देखो ब्रैकेट ओपन होने के बाद डेल्टा पी भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, वेरी स्मॉल वैल्यू। डेल्टा वी भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, वेरी स्मॉल वैल्यू। दो स्मॉल वैल्यू का प्रोडक्ट इज Negligible. very much less, so hence we are neglecting it. Hence work वाले फॉर्मूला में माइनस पी इंटरनल इंटू डेल्टा वी ओनली, बट डेल्टा वी इज होल चेंज। V1 से V2 होल चेंज नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा चेंज चाहिए। तो हेंस अप्लाइंग डेरिवेटिव क्या करता है गाइस, थोड़ा थोड़ा चेंज करता है। थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज करने के लिए अप्लाइंग डेरिवेटिव। सो वर्क के फॉर्मूला में डेल्टा वी के बदले डीवी क्यों लिखा ओमकार? क्योंकि थोड़ा थोड़ा चेंज करता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम चेंज हुआ, थोड़ा थोड़ा वर्क कैलकुलेट हो गया, वापिस थोड़ा वॉल्यूम चेंज, वापिस थोड़ा वर्क, वापिस थोड़ा वॉल्यूम चेंज, वापिस थोड़ा वर्क, सारे वर्क मिल गए थोड़े थोड़े वाले। अभी ऐड कर दूं बाय अप्लाइंग व्हाट, इंटीग्रेशन, राइट? यस। सो सारे थोड़े थोड़े वर्क को कैलकुलेट करने के लिए अप्लाइंग इंटीग्रेशन। सो दैट्स व्हाई इंटीग्रेशन, देखो मैंने इंटीग्रेशन कहां से कहां अप्लाई किया भाई, थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम चेंज करो जब तक V1 से V2 ना हो जाए, V1 वॉल्यूम से V2 ना हो जाए तब तक, राइट? और जो भी वर्क मिलते जा रहा है वो टाइम पे वो सबको ऐड करते जाओ।
ओके राइट नाउ इन माय एग्जांपल देयर आर टू वर्क्स W1 एंड W2. तो भाई मैंने लिखा W1 से वर्क ऐड करना चालू करो, W1 से वर्क ऐड करना चालू करो, कहां तक करो? W2 तक. W2 तक. बात समझ में आई भाई? Yes. हाँ सर. Yes sir. चलो. सर हाँ सर आपने मतलब डेल्टा पी इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर क्यों है? देखो ये डायग्राम देखो क्या, ये डायग्राम में देखो आप, ये क्या है बेटा? इंटरनल प्रेशर. और ये क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर. बराबर. अभी फिलहाल इक्वल है. हाँ सर. ये थोड़ा ही ऊपर आया, थोड़ा ही ऊपर आया, मतलब दोनों के बीच के गैप थोड़ा ही होगा. हाँ सर. मतलब ये 4 चलता होगा, ये 5 चलता होगा, ऐसे कुछ. हाँ सर. एम आई क्लियर? हाँ सर. सो इसके लिए मैंने लिखा P इंटरनल माइनस P एक्सटर्नल, द चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल, राइट. और फिर एक्सटर्नल प्रेशर को आई रिप्लेस्ड बाय, बात समझ में आ रही है? सर हाँ बोलिए. सर अगर वो नीचे आता तो फिर एक्सटर्नल माइनस इंटरनल लेते ना? नहीं, जो बढ़ने वाला है ना उसकी बात करने का. तो इंटरनल प्रेशर ज्यादा है तो इसके लिए मैंने आगे लिया उसको. हाँ सर. हम लोग तो सिस्टम का वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं ना केमिस्ट्री में कभी भी. हाँ सर. इसके लिए इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर लिया अपन ने. ठीक है भाई. हाँ सर. अभी थैंक यू. अब माय प्लेजर. आगे इधर देखिए. अभी इधर इंटरनल प्रेशर इज व्हाट प्रथम? वेरिएबल. सो आई हैव कैलकुलेटेड बाय द सिंपल फॉर्मूला PV इक्वल्स टू NRD. तो प्रेशर को इज गोइंग टू बी व्हाट? NRD बाय V, राइट? Yes, sir. हाँ सर. सो मैंने क्या किया, ये जस्ट प्रेशर को NRD बाय V से रिप्लेस किया. मैंने क्या किया? जल्दी गाइस, फास्ट. प्रेशर को रिप्लेस किया एनआरडी बाय वी से. NRD बाय V से NRD को बाहर लिया कॉमन, इट्स dV बाय V नाउ. सो इंटीग्रेशन ऑफ dV बाय V गाइस मैथ्स. dV बाय V का इंटीग्रेशन log to the base E where volume varies from V1 to V2, right? Am I clear? Yes, sir. Okay. So here now I am applying the limit, upper limit minus lower limit. फिर simply log A minus log B का formula, log of A by B करके I simply come up with this thing. And इधर शहबाज क्या करना है? log E को convert करना है log to the base 10. एक ही फैक्ट है. log to the base E को log to the base 10 में कन्वर्ट करना है. एक ही फैक्टर. कौन सा? 2.303. 2.303. याद है? केमिकल काइनेटिक्स में भी था. आगे here I got my formula where V2 by V1 is replaced by P1 by P2, right? Everyone, am I clear? Yes sir. Great. अभी आगे देखो भाई, क्या एक और वर्क का फॉर्मूला किया था. इधर वर्क माइनस PX इंटू डेल्टा V माइनस PX V2 माइनस V1. देखो फिर PV PX इंटू V2 मतलब PV को NRD से रिप्लेस कर रहा हूं मैं. देखो ध्यान से, PV2 को N2RD, PV1 को N1RD से रिप्लेस किया मैंने. इन शॉर्ट फॉर्मूला में इधर से इधर. ओए यश, ओ यश, PV को रिप्लेस किया NRD से बस. तो PV2 is equal to N2RT और P1 is equal to N2RT. हाँ, ये फॉर्मूला देखो. वर्क का क्या फॉर्मूला है? वर्क इज माइनस PV P इंटू डेल्टा V. इधर नीचे देखो वर्क का फॉर्मूला है माइनस डेल्टा NGRT, राइट? हाँ कि ना? हाँ सर. ओके चलो. फिर टर्म्स ऑफ शॉर्टकट
शॉर्टकट फॉर द न्यूमेरिकल, क्वेश्चन में वर्क कैलकुलेट करने बोला है, हम लोग ऑलवेज एक वर्ड देखने का, कौन सा वर्ड? वैक्यूम। वैक्यूम वैक्यूम दिया है तो वर्क क्या लिखने का? 0 सिमिलरली कौन सा वर्ड लिखा है? अगर रिवर्सिबल है तो ही मैक्सिमम वर्क का फॉर्मूला आइदर V2 by V1 और P1 by P2, प्रेशर दिया है तो P1 by P2, वॉल्यूम दिया है तो V1 by V2, V2 by V1। हाँ सॉरी V2 by V1। ओके, और ये दोनों वर्ड नहीं दिया है, वैक्यूम भी नहीं दिया है, रिवर्सिबल भी नहीं दिया है, तो अगेन दिस टू फॉर्मूला आपको दिमाग में रखनी है, दैट इज माइनस पी EX into delta V or minus delta NGRT. Am I clear? Yep, sir. Clear. Okay. Here, see. अभी देखिए, ये देखिए, आप वर्क के फिर अपने न्यूमेरिकल किए हैं, दैट यू हैव टू डू इट, जरा देखो आप, और प्लीज लॉग बुक से सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं आता है तो वेडनेसडे आ जाओ, अपन करते हैं उधर बैठ के, ठीक है? नहीं आता है ऑनलाइन भी मैं सिखा सकता हूँ, अगर नहीं आप आते हैं उधर तो ऐसे कुछ नहीं, उधर आना ही है करके, बट यू हैव टू टेल मी, यू हैव टू आस्क द क्राउड्स, ठीक है? ओए चलो आगे, ठीक है। हाँ, अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई किया अपन ने आइसोथर्मल प्रोसेस पे, देखो अच्छे से, ये बरोबर याद रखना, लास्ट टाइम ही किया था अपन ने, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। जैसे आइसोथर्मल आता है, आइसोथर्मल मतलब डेल्टा T इक्वल्स टू 0, डेल्टा V is equal to 0, U इक्वल्स टू 0। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा U को 0 कर दिया मैंने, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा U को 0 कर दिया। हाँ, डेल्टा U को 0 कर दिया, तो अगर डेल्टा U को 0 किया तो क्या हो जाएगा? माइनस W इज इक्वल टू प्लस Q और माइनस Q इज इक्वल टू प्लस W। यस, अभी W उधर गया तो माइनस W हो जाएगा, माइनस W इक्वल्स टू प्लस Q। what do you mean by minus W? System is working. System is working, very good. तो माइनस W इक्वल्स टू प्लस Q, प्लस Q मतलब हीट एब्सॉर्ब करना, हीट एब्सॉर्ब करना अलाउड है, बट सामने माइनस W मतलब सिस्टम को उतना ही वर्क करना पड़ेगा, एक्सपांशन वाला उतना ही वर्क करना पड़ेगा, राइट? फिर माइनस Q इज इक्वल टू प्लस W, मतलब माइनस Q मतलब हीट रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज करना है, करो उतना ही एनर्जी, लेकिन बढ़ाओ बाय पॉजिटिव वर्क, कंप्रेशन वर्क। ग्रेट, वेरी गुड गाइस, सुपर। आगे चलो, अप्लाइंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऑन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब Q इक्वल्स टू 0। तो अप्लाई करो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W में Q 0 हो जाएगा, तो दो बातें, प्लस डेल्टा U इक्वल्स टू प्लस W एंड माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W। हाँ, चलो अभी मतलब समझाओ। इधर मैंने देखो लिखा है प्लस डेल्टा U इक्वल्स टू प्लस W का बराबर पढ़ो, प्लस W मतलब कंप्रेशन मतलब सराउंडिंग इज वर्किंग ऑन सिस्टम, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। अभी एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा मॉलिक्यूल का, वो जिसको टच करेगा वो मॉलिक्यूल उसको गर्म करेगा, आई मीन हीटिंग इफेक्ट, राइट? यस सर। हाँ यस। चलो हाँ ओके। माइनस W मतलब सिस्टम वर्क्स, एनर्जी सिस्टम इज वर्किंग, एक्सपांशन, सिस्टम इज वर्किंग, सिस्टम लूजेस एनर्जी, मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो गई, वो अभी ठंडा हो गया है, वो खाने को टच करता है ना फ्रिज में, फ्रिज दिख रहा है, ये देखो फ्रिज में
हाँ, सबको टच करेगा, खाने को सबको ठंडा करेगा। तो एंट्रेंस का क्वेश्चन एक क्लियर किया था मैंने, क्या फ्रिज के अंदर क्या काम हो रहा है? तो भाई फ्रिज के अंदर एडियाबैटिक एक्सपांशन हो रहा है। बराबर बराबर, ओके चलो, बराबर। क्या बात है, समझा कि नहीं? समझा। आगे आगे बढ़ते लाइफ में बेटा। Applying the first law of thermodynamics on isochoric process, as you know that isochoric process में change of volume equals to 0. change of volume 0 है, work 0 है guys, work हाँ 0। बराबर, वॉल्यूम में So चेंज नहीं तो वर्क नहीं। बराबर, दो बातें हो गई बेटा, प्लस डेल्टा यू इक्वल्स टू प्लस क्यू वी And और माइनस डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस क्यू वी। एम आई राइट? Yes, sir. yes sir. Okay, so am I clear now? Clear, sir. Yes, the energy of molecule can be changed by heat absorbed or heat released in the isochoric process. Come again. once more sir। प्लस डेल्टा यू इक्वल्स टू प्लस क्यू वी था, हाँ है देखो सामने है स्क्रीन पे। हाँ दिख रहा है। इसका मतलब क्या? प्लस क्यू वी मतलब हीट एब्जॉर्ब कर सकते हो आप, हाँ उससे एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा। हाँ सर, जिसको वो बढ़ जाएगा। माइनस क्यू वी मतलब Heat reduced हीट रिलीज करता है। and molecule का energy भी decrease होता है. वाह, वाह, चलो आगे। आइसोबैरिक प्रोसेस, चेंज ऑफ प्रेशर 0 है गाइस, चेंज ऑफ प्रेशर 0 है, एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर 0 नहीं है। कम अगेन, Delta P is change 0. not external pressure and internal pressure is 0, right? yes, They have some value, okay, hence nothing is 0। hence फॉर्मूला में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कुछ 0 नहीं हुआ। तो व्हाट डू यू मीन बाय इट? हाँ सर। डेल्टा यू मतलब मॉलिक्यूल का एनर्जी हीट से भी चेंज हो सकता है और वर्क से भी चेंज हो सकता है। नहीं समझे? समझा सर। बराबर समझा सर। क्या सर, अगर इधर कुछ मतलब फिर चेंज इन Can you change the heat and can you change the work? चेंज इन प्रेशर दोनों 0 से। है। हाँ, चेंज इन प्रेशर 0 है, इंटरनल एक्सटर्नल 0 नहीं है, इसलिए देखा जाए तो कुछ 0 नहीं है, तो फिर वो हीट से और वर्क से दोनों से चेंज होगा। वो क्या? हाँ, Energy एनर्जी of ऑफ the molecule. मॉलिक्यूल, यस, ऐसे बोलो अच्छे से। हाँ चलो, तो भाई इधर है ना, मेरे को आगे एक फॉर्मूला यूज करना था, तो मैंने थोड़ा क्या वो देखो ना, मैंने क्या किया उधर, एक वर्क को रिप्लेस किया माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा वी से। देखो ना, वर्क को क्या रिप्लेस किया? Minus Px into delta V. ओके, और उसको उधर भेजा, उधर किधर, इक्वल टू के उस तरफ। बराबर, बराबर, तो क्यूपी का एक फॉर्मूला बना, याद रखना पड़ेगा भाई। क्या है फॉर्मूला क्यूपी का? Delta U plus P internal into delta V. यस, वेर यू नो डेल्टा पी 0, देखो मैंने बोला था ना, डेल्टा पी 0 है मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू सेम है। तो मैंने एक्सटर्नल प्रेशर को रिप्लेस किया था इंटरनल प्रेशर से। मैं राइट? आर्य, गौरव, एक फॉर्मूला याद रखोगे अभी, क्यूपी इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। चलो गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेन पार्ट पे आ चुके हैं। एंथैल्पी गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट इज अ समेशन ऑफ internal energy plus energy arises due to its pressure and volume. Come again. Enthalpy is nothing but a Summation of Summation of energy plus pressure of volume and body. plus energy arises due to pressure and its volume. मैं clear? Clear. चलो आगे बढ़ते हैं। क्या
हम लोग एंथैल्पी कैलकुलेट नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. Hence, we are focusing on delta H, change in enthalpy. That is final enthalpy minus initial enthalpy. So final enthalpy, this guys, see over there, I've replaced by U2 plus P2 V2. yeah minus initial enthalpy U1 plus P1 V1. So just I take together final energy and initial energy, which is just replaced by change in energy, as well as over there P2 V2 minus P1 V1 is change of PV. I got delta H का फॉर्मूला. डेल्टा H का फॉर्मूला में क्या क्या है? डेल्टा U फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से कैलकुलेट कर सकते हैं, और चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं. हेंस डेल्टा H कैन बी कैलकुलेटेबल, वी कैन कैलकुलेट, राइट? आगे तो गाइस, अगर यू नो मैनी केमिकल प्रोसेस में, हमारे जो केमिस्ट्री की केमिकल प्रोसेस बोलता है, मैनी केमिकल प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है. तो प्रेशर को मैंने बाहर लिया, चेंज के नहीं हो रहा है ना, चेंज बाहर ले लो, कांस्टेंट ले लिया, और उधर क्या चेंज, और आई गॉट द फॉर्मूला डेल्टा H इक्वल्स टू फास्ट खुशबू, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा mg आता. पहले तो वो तो बोलो, डेल्टा U डेल्टा प्लस U P प्लस डेल्टा V, P डेल्टा V. और PV को रिप्लेस बाय NRT, दैट इज NGRT. NRT NG क्यों लिखता हूँ बार बार मैं? NG क्यों Number of लिखता हूँ? moles of gas. गैस के Yes, मोल्स कंसिडर होते हैं खाली. Yes. क्यों गैस के मोल्स ही? क्यों? क्योंकि गैस के मोल्स ही वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं. सॉलिड लिक्विड के मॉलिक्यूल जगह पे ही बैठे रहते, कोई वर्क नहीं करते, वॉल्यूम चेंज नहीं करते. वॉल्यूम चेंज इज ओनली कॉल्ड एज वर्क. सो वर्क करना, वॉल्यूम चेंज करना सिर्फ गैसियस मॉलिक्यूल्स के हाथ में है गाइस. ऑलवेज आप भूलो नहीं, इसके लिए मैंने गैसियस टर्म डाल दिया. देखो जी, ओके प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स इज डेल्टा NG. बराबर बराबर. आगे बढ़ते हैं. बड़ा ये आगे अभी बढ़ना पड़ेगा, वो तो इतना ही पढ़ा था अपन ने. दैट कॉल्ड एज क्विक रिवीजन. 45 मिनट्स लगे बेटा, बट कोई वांधा नहीं, चैप्टर पूरा अच्छे से रिवाइज हो गया बेटा. बराबर कि नहीं? बराबर ओके बेटा, चलो अभी. बराबर. हाँ बेटा. सर ऐसे हर लेक्चर में होगा क्या? अरे आपको क्या लग रहा है? होगा ऐसा हर लेक्चर में हुआ तो थर्मोडायनामिक्स क्लियर ही हो जाएगा फिर. बेटा एकदम परफेक्ट क्लियर हो गया. क्या बात है, थैंक यू. चलो आप ही करें ना. अरे यार, थैंक यू बेटा. चलो फिजिकल एंथैल्पी बोल भाई. एंथैल्पी का दो पार्ट कर दिया अपन ने, फिजिकल एंथैल्पी एंड एनीबॉडी व्हाट इज फिजिकल रिएक्शन? In which the chemicals are not used. कुछ भी मतलब कुछ भी. हाँ बराबर ना, फिजिकल में तो नहीं, केमिकल यूज करते हैं. चुप रहे. कुछ भी रिएक्शन फिजिकल में में तो केमिकल यूज करते हैं. हाँ करते बाबा. काय करतो काका? हाँ जैन साहब बोलो. स्टेट चेंज होता है, मतलब गैसियस टू लिक्विड या लिक्विड. यस, वेरी गुड. तो जैन ऑन राइट ट्रैक. सी हियर, ये देखो, ये रिएक्शन को हम लोग फिजिकल रिएक्शंस बोलते हैं, जहां पे स्टेट चेंज हो, समथिंग. सपोज अपन चलो एक स्टेट चेंज हो, बस इतना क्लियर है. पहले ये उसकी आइडेंटिटी, मतलब पहले भी मैं सोडियम बोल रहा था, अभी भी सोडियम ही बोल रहा हूं. नेम चेंज नहीं होना. इस कॉल्ड एज फिजिकल रिएक्शन. इधर ओमकार
हाँ देखो, यस सर। पहले हाइड्रोजन बोलता था, अभी पानी बोल रहा हूं, नाम चेंज हो जाना। हाँ तो बराबर। रिएक्शन में, ये मेरा डेफिनेशन है, नाम चेंज हो जाना तो केमिकल रिएक्शन, नाम चेंज नहीं होना, नाम चेंज नहीं होना, दैट इज सोडियम, तो फिजिकल। तो फिजिकल रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग फिजिकल रिएक्शन में सी चेंज इन एंथैल्पी मतलब चेंज ऑफ एंथैल्पी का फॉर्मूला डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, बराबर ना। बेसिकली वर्क कितना, यार मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो, ये फॉर्मूला है आंखों के सामने आपके पास, हाँ कि ना। ओए, हाँ सर। ये वाला पार्ट है ना, वो वर्क वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, हाँ वर्क क्या पार्ट है, वर्क कितना होता है, थोड़ा सा वर्क होता है। तो कैन आई से दैट ऑलमोस्ट ये दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। सो वो डेल्टा पीवी नेग्लेक्टेड होगा ना फिर। नहीं 15-20 किलो जूल होता है, बट ये लोग डेल्टा यू वगैरह 100-200 किलो जूल में होते हैं, ऐसे कंसिडर अच्छा। करना है उसको, 15-20 को निग्लेक्ट नहीं करना है। दोनों के कंपेयर वो छोटा है। हाँ, दोनों के कंपेयर में वो छोटा है। तो मैंने खाली बोला चेंज इन एंथैल्पी, बहुत जन को थोड़ा डिफरेंट साउंड करता है चेंज इन एंथैल्पी, तो आप बोल सकते हो ना चेंज इन एनर्जी, चलेगा समझने के लिए। आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. मतलब मुझे आपको सपोज बोलने में ऑकवर्ड लग रहा है चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, थोड़ा से ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के लग रहा है, अगर एकदम सिंपल वर्ड में समझने का, चेंज ऑफ एंथैल्पी इज नथिंग बट अ चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन, राइट? यस और नो? हाँ बोल भाई, चेंज ऑफ एंथैल्पी क्या होता है? चेंज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। अरे चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन, बेटा बॉडी नहीं। क्लियर? इन शॉर्ट, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी इज कॉल्ड एज चेंज ऑफ एनर्जी, राइट? बात समझ में आ रही है? हाँ कि ना? Yes, sir. हाँ सर। तो रिएक्शन में कितना चेंज ऑफ एनर्जी हो रहा है वो अपन लोग बार बार रिएक्शन में कैलकुलेट करेंगे। तो फिजिकल रिएक्शन में करेंगे तो फिजिकल एंथैल्पी हो गया, वो केमिकल रिएक्शन में करेंगे तो केमिकल एंथैल्पी है। एंथैल्पी हो गया। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ देव, जरा वापस रिपीट करो। अगर फिजिकल रिएक्शन का वो एनर्जी चेंज हुआ देन वी कॉल इट एज फिजिकल एंथैल्पी। या एंड केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंज हुआ तो इट्स कॉल्ड एज केमिकल एंथैल्पी। चलो, अभी फिजिकल एंथैल्पी में तीन पार्ट किए अपन ने। फेज ट्रांजिशन एंथैल्पी, ठीक है। फेज ट्रांजिशन के अंदर भी 3 पार्ट पढ़ने वाले अपन लोग गाइस। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एक करके कर रहा हूं, पहले एक चार्ट बना देता हूं ताकि आपको याद करने में इजी हो जाए। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन and this is enthalpy of sublimation. I'll come on it. इस मॉलिक्यूलर चेंजेस में this is guys enthalpy of ionization, electrokin enthalpy, and atomization, enthalpy of atomization. तो ये सब पढ़ना है। हाँ बेटा, एक एक करके अपन ले रहे हैं। और हियर
सर इसमें कुछ रिलेटेड है? नहीं, कुछ रिलेटेड नहीं है. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन और मॉड एंथैल्पी. एंट्रेंस में थोड़ा ज्यादा एंथैल्पी पढ़ेंगे अपन, बस दैट्स इट. मतलब इससे भी ज्यादा और है? होता ही हर मतलब चैप्टर में. ये सब बोर्ड्स में है ना इतना? हाँ हाँ. अच्छा, मुझे लगा इसमें से कोई डिलेटेड एंथैल्पी है. नक्को बाबा नक्को. चलो आगे बढ़ते हैं. काय इकडे बघा आता तुम्ही क्या पढ़ने जा रहे गाइस? कॉलेज चालू होने वाली थी, पीछे धक्का धकेल गई. अच्छा ना सर? यस, बहुत अच्छा हुआ मेरे सर हिसाब से. कॉलेज को ट्रेन चालू हो रहा है कि नहीं? क्या? ट्रेन चालू हो रहा है कि नहीं? ट्रेन तो सवाल ही नहीं है चालू होने का. कॉलेज पर कॉलेज में जितने ज्यादा पब्लिक नहीं पढ़ती है उतनी एक उससे 4 गुना ट्रेन में ट्रैवल करती है, एक ट्रेन में. वो भी चलो इसके लिए ज्यादा अभी हो गया. तक उन लोग ने सिर्फ असेशन सर्विसेज के लिए रखा है. हाँ, सिर्फ इधर देखो. अभी फेज ट्रांजिशन मतलब सपोज कोई भी स्पीशीज है. हाँ, फ्यूजन मतलब पिघलना. वन ऑफ द मीनिंग ऑफ फ्यूजन इज मेल्ट होना. बेटा नाम में काम छुपा है, पता है ना? तो यार पिघल रहा है, देखो. ये पिघलते हुए रिएक्शन में जो चेंज ऑफ एनर्जी है, जो चेंज ऑफ एंथैल्पी है, दैट चेंज ऑफ एंथैल्पी को स्टाइल में बोला एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. बस, और क्या. Am I clear? बोलो. Whenever, ध्यान से देखो मैं बोल रहा हूं. When, स्टाइल में अच्छे से बोलता हूं. एक मिनट में. इसको बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी. क्या बोला इसको? डेल्टा एच को चेंज इन एंथैल्पी दैट एक्कम्पनीज. मतलब वो कैलकुलेट करना है. कब करना है? व्हेन, बोलो, 1 मोल ऑफ solids, 1 mole of solid, liquid, 1 mole of solid converted into, बोलना यार, 1 mole of liquid. प्लीज मेक श्योर दैट आजू बाजू में क्या हो, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो. एम आई क्लियर? Yes, sir. कैन यू कम अगेन? सर सिंपल है. पिघलता, जो चीज पिघल रही है वो टाइम पे जो एनर्जी चेंज हुई उसको कैलकुलेट कर लो, बस. दैट्स स्टाइल में बोला है. उसको क्या बोला स्टाइल में? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. यस. अभी ये जो आप चेंज कैलकुलेट करोगे उसका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा. ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का आंसर. पूछो क्यों? क्यों सर? क्योंकि सॉलिड में है ना, कभी भी बचपन में पढ़ा होगा, कम एनर्जी होती है हर एक सॉलिड मॉलिक्यूल्स में. लिक्विड में थोड़ी और ज्यादा, गैस में इतनी एनर्जी हो जाती है कि वो इधर उधर भागने लगता है. सो चेंज ऑफ एनर्जी, दैट इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, तो आंसर किस में आएगा?
Positive. Come. Can you come again? Pratham, Dev. Bolo. Because energy of solid is way less than liquid, and liquid का energy is way less than gas. तो जो भी प्रोडक्ट में उस फेज में चेंज हो रहा है उसका फाइनल माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके तो हर बार वो पॉजिटिव नहीं आएगा. ओके, चलो. सो इन शॉर्ट आपको इतना दिमाग चल रहा है कि आंसर पॉजिटिव में आएगा. अभी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. चलो अभी ये आंसर ओमकार बोलेंगे बस. क्यों सर? नाम में काम छुपा है. वेपराइजेशन करो. चलो हो गया. Liquid to gas. हाँ सर, अभी एनर्जी चेंज कर लो ना कैलकुलेट. और हाँ, वही जो चेंज ऑफ एनर्जी आंसर आया है उसको स्टाइल में बोलने का. आज से उसको क्या बोलने का? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. हाँ, और ये जब भी एनर्जी चेंज कैलकुलेट कर रहे होगे ना तो प्लीज जरा क्या आजू बाजू का प्रेशर एंड टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट. हाँ, क्लियर. और ये भी आंसर पॉजिटिव में आएगा. बराबर. ओके. तो एग्जाम में जब भी आएगा ना तो एकदम स्टाइल में लिखना पड़ेगा आपको. क्या कि it's an enthalpy change that accompanies whenever 1 mole of liquid converted into its gaseous state at a constant temperature and pressure. Sir. हाँ बोलो. Sir, can you repeat कि वो आंसर सिर्फ पॉजिटिव में क्यों आता है? ओके, आंसर कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्ट का एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का एनर्जी. प्रोडक्ट का एनर्जी गैस में है ना, लिक्विड. आंसर किस में आएगा? ओके, पॉजिटिव में. हाँ, पॉजिटिव में. अभी बोलो एंथैल्पी ऑफ बोलो सब्लिमेशन. हाँ, क्या होगा? सॉलिड टू गैस. वाह, अभी देखो, कभी भी डायरेक्टली तो गैस में होता नहीं है. ये आएगा बीच में, आके चले जाएगा. हमें क्या करना है? बरोबर कि नहीं समझा? इधर से चालू करने का, इधर रुकने का नहीं. हीट को देते और गैस में हो जाए तो भी एनर्जी चेंज कैलकुलेट करो. ओके. ये भी पॉजिटिव में आएगा. कैलकुलेट करते टाइम प्लीज जरा क्या आजू बाजू का टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखो. समझे कि नहीं? समझे सर. बेटा एक खास बात बोलूं. बोलो. एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन is nothing but enthalpy of fusion plus enthalpy of vaporization. हाँ सर, मतलब देखो ना, ये जो पूरा स्टेप है वो 2 स्टेप में डिवाइड कर सकता हूँ मैं. हाँ, यस सर. इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? फ्यूजन. और इधर से इधर को वेपराइजेशन. दोनों के टोटल को सब्लिमेशन. अरे वाह. तो इस तरह से हम enthalpy of sublimation we can easily calculate it with the help of enthalpy of fusion plus enthalpy of vaporization. Am I clear? Sir, Yes. इसमें we don't have to consider gas to solid. You can. आंसर उल्टा हो जाएगा. डायरेक्ट ही ले जाने का. आंसर सपोज +5 किलो जूल होगा तो -5 आएगा आंसर. ऐसे. हाँ, so इसमें मतलब नेगेटिव भी आ सकता है if you are taking gas to solid. Yeah.
ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगा ना, गैस टू सब में सॉलिड। नेगेटिव आएगा अगर अबे गैस टू नहीं, लिक्विड। गैस टू सॉलिड में लेगा तो नेगेटिव आएगा। हाँ बिकॉज सॉलिड का लेस है। हाँ तो हाँ गैस टू लिक्विड किया तो भी नेगेटिव ही आएगा ना। हाँ 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 तो वही तो बोला सब में नेगेटिव ही आएगा। समझ गए बेटा आपकी भावना को। थैंक यू सर। Am I clear guys, everyone? Yes, Clear, sir. sir. Clear. So okay, अब इधर ध्यान से, enthalpy of molecular changes that is enthalpy of molecular changes में here very important, enthalpy of ionization. Anybody ionization? What is ionization guys? गैसियस स्टेट में लाना है आयनाइजेशन के लिए, मेक श्योर दैट स्पीशीज को, फिर उसका इलेक्ट्रॉन निकालना है। Now guys, energy change in this process is called as ionization enthalpy. This is also positive because we require to remove here positive matlab we require some energy to remove an electron. किया है ना ये अपन ने इलेवेंथ में आयनाइजेशन एंथैल्पी। यश, आयनाइज मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो गैस में लाना है, वो याद रखना है। हाँ सर। और निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। हाँ। अभी वो आपको पता है कि वो क्या, ये वन मोल ही लाना है, गैस में लाना है। पॉजिटिव क्यू तो भाई एनर्जी रिक्वायर्ड ना टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई हमें लाना पड़ेगा। पॉजिटिव मतलब हमें लाना पड़ेगा, माइनस मतलब रिलीज कर रहे हैं वो, ऐसे माइनस मतलब रिलीज करना, पॉजिटिव मतलब रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड। पॉजिटिव मतलब माइनस मतलब एनर्जी रिलीज्ड। सो लेट्स सी द सेकंड वन, दैट इज सर इधर एनर्जी गेन टू, किधर एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेन द इलेक्ट्रॉन ना। नहीं, सोच के बोलो। सी अभी ये लोग है ना, आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करना। मेरी बात सुनो, भी आपको ये तो पता है कि इसको भूख लगी है एक इलेक्ट्रॉन खाने का मतलब, समझा? क्या खुद से मेहनत, देखो इसको भूख लगी है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब चाहिए। अच्छा। जैसे सामने आया वैसे वो खुद से खाने गया। खुद से जो मेहनत करता है, मेहनत किया, खुद से इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो एट दैट टाइम मेहनत किया तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज हम लोग बोलते हैं जनरली सारे अनस्टेबल एलिमेंट, स्टेबल एलिमेंट नहीं लेने जाते खुद से इलेक्ट्रॉन, तो जनरली व्हाट अनस्टेबल एलिमेंट बोलो, अनस्टेबल एलिमेंट खुद जाता है इलेक्ट्रॉन लेने। हाँ, रिलीजेस एनर्जी व्हाइल गेनिंग इलेक्ट्रॉन। Am I clear? यस क्लियर सर। ओह वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। फटफट हो रहा है सर। फट enthalpy of atomization. What is enthalpy of atomization? तो मतलब बोल भाई। हाँ, हीट कंप्लीट करना है क्या?
क्या बोल रहा है? सॉरी, बोलिए ना आप इसको। नहीं सर कुछ नहीं। अच्छा, सी हियर, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल को क्या 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल को कंप्लीटली तोड़ देना, क्या क्या लिखा मैंने? कंप्लीटली तोड़ देना। वाह, बराबर लिख रहा है ना मैं? हिंदी मराठी बराबर है। एन है ना वो एन है ना सर? क्या? क्या बे? तो वो मराठी एन लिखा नहीं है। है, वो तो है। अच्छा अच्छा। तो यार तोड़ वैसे पाए समझ लग रहे रहा है पाए। कुछ नहीं। समझे सर, अच्छे एकदम परफेक्ट है। तोड़ देना। भी नहीं बराबर सर है? अभी नहीं, अभी ये द बराबर नहीं द है सर। ए यार, अरे द कुछ तो उर्दू वाला लेटर लग रहा है। सर थोड़ा चेंज कर दो ना सर, वो दिक्कत होती है बाद में नोट्स। ठीक है। नहीं सर, ये सर ये हिंदी नहीं में कर लिख लो, सकते। सर हिंदी में तो लिख लो। मराठी ये सर ऐसे लाइफ में हार नहीं मानने की सर। हाँ बेटा, वेरी गुड। अच्छा सर। तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल को तोड़ के अपने गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करना। कम अगेन। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल को दो तोड़ गैसियस के मॉलिक्यूल अपने गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये भी पॉजिटिव में। तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए ना यार, कम ऑन, यस और नो? हाँ सर। हाँ सर। चलो ग्रेट। सो चलो एक और एग्जांपल। तोड़ दिया, इसको मैंने सारे एटम्स में कन्वर्ट कर दिया। देखो, 4 हाइड्रोजन के एटम्स गैसियस, एक कार्बन का एटम गैसियस। फॉर दैट तोड़ने के लिए जो बोलना भाई, तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगी उसको एटीओ ऑफ हाँ, एटीओ लिखने का, बस पूरा नहीं लिखने जाने का। एम आई क्लियर? समझा कि नहीं बाबा? समझ लो सर। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ लास्ट वन सॉल्यूशन, फिजिकल एंथैल्पी में लास्ट बेटा, क्या बात है, वाह। चलो, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन याद रखना, 1 मोल ऑफ कोई भी कंप्लीटली पानी में डाल दिया, अनलिमिटेड वाटर जितना आपको लाना है उतना। क्या बोला मैं, क्या बोला? क्या 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज, हाँ, वाटर में डालना है डिसॉल्व कंप्लीटली। कंप्लीटली। 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज, 1 कंप्लीटली डिसॉल्व मोल वाटर। ऑफ एनी स्पीशीज कंप्लीटली पानी में डाल देना एट दैट टाइम। ठीक है, उसका बेचारे का क्या चेंज हो गया? स्टेट चेंज हो गया। स्टेट चेंज हो गया। Now the energy change in this whole process is called as enthalpy of solution. सर एक बार फिर से। आंसर दोनों आ सकता है, आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव। कैसे मैं सर सिखाता हूं, एक बार फिर से, एक बार फिर से। 1 मोल जो अच्छा लगता है, कोई भी स्पीशीज लाओ, 1 मोल, अनलिमिटेड पानी, जितना आप ला सकते हो पानी उसमें डाल दो। ओके तो एनर्जी चेंज होगी ना, हाँ सर। होगी स्टेट होगी। चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, देखो। तो अभी बराबर। जो एनर्जी चेंज होगा उसको कैलकुलेट करना है। हाँ, उसको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं, ऐसा। ओके। और कैलकुलेट करके आंसर पॉजिटिव में भी आ सकता है और नेगेटिव नेगेटिव में भी। समझा अभी? कैसे?
तो सर वो फर्क नहीं पड़ता कि पूरा सोल्यूबल है कि नहीं? जितना भी सॉल्युबल है वो अपना सॉल्युबल होगा ना भाई, कितना भी सॉल्युबल होगा वो अपनी लिमिट, एक्सट्रीम लिमिट तक उसको डिसॉल्व करने का, इन शॉर्ट। ओके सर। और क्वांटिटी 1 मोल ही लाने का, अच्छा, Okay. सिर्फ वन मोल। 1 मोल लाने सर का। पानी में डालने के बाद हाँ बोलो। एनर्जी कम हो जाएगी ना? सी, एनर्जी कम होगी कि ज्यादा होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द 2 फैक्टर दैट आई एम टीचिंग राइट नाउ। Will do? Okay. Yes, sir. So here देखो, ये मैंने पानी में डाला, तो पहले तो ये लोग टूटेंगे। पहले ये लोग क्या होंगे भाई, बोलो। टूटेंगे। हाँ, तो इधर मैं लिख रहा हूं, ये एनर्जी चेंज को लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। टूटना के लिए एनर्जी चाहिए पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव में रहता है। दिस फर्स्ट फैक्टर समझा, लैटिस एंथैल्पी? नहीं समझा? बोलो समझा वापस। सर। यश, यश बोलो। पहला फैक्टर क्या है, पानी में जाएंगे वो लोग तो टूटेंगे। टूटना। सॉलिड चीज, कभी भी कोई भी सॉलिड चीज टूटती है तो उसको लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। ओके सर। ओके ओके सर, आगे बढ़ता है। तो गाइस, अभी ये लोग आजू बाजू कौन है? वाटर पानी। आजू बाजू पानी है। कौन है आजू बाजू? वाटर। पानी। पानी के साथ ये लोग बॉन्डिंग बनाए, देखो पानी का ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, और ये भाई साहब हाइड्रोजन। बात समझ रहे? अकीना, हाँ सर। दूसरा काम क्या हुआ वैसे, एक्स मोल ऑफ पानी के साथ चिपक गया ये, कौन? बोलो ना। 1 मोल ऑफ सोडियम। हाँ, नहीं समझा? हाँ कि ना? 1 मोल ऑफ सोडियम। दूसरा काम समझा क्या हुआ? Attached to with some number of moles of water. इसको पानी के साथ रिएक्शन को हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। कैन यू सी इनसाइड इट गाइस केयरफुली कि बॉन्ड बन रहा है। द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है गाइस। इसके लिए जो लिखता हूं मैं, ड्यू टू बॉन्ड फॉर्मेशन, एम आई क्लियर? सो इसके लिए ये हाइड्रेशन एंथैल्पी वो लोग करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। सो कैन आई से दैट कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी के मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट है। सपोज ये 5 किलो जूल है और ये -7 किलो जूल है, ओवरऑल आंसर क्या आएगा? नेगेटिव -2। और अगर ये और ये, तो ओवरऑल आंसर विल बी डिपेंड्स। Am I clear? Yes or no? So magnitude of this can be positive or negative, depends upon these two factor guys. लैटिस एंथैल्पी, टूटने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, और नहीं समझा? समझा कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर।
Okay. So guys, this is the completion of what? Enthalpy of solution clear हुआ? 1 mole of solid को completely पानी में क्या एक्वेस कंप्लीट में डिसॉल्व होने के लिए अनलिमिटेड वाटर में जो भी अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी हुआ है, that change of energy is called as, guys, Enthalpy of solution. okay, great. It depends upon two factors, that is enthalpy and हाइड्रेशन एंथैल्पी. great. The lattice enthalpy always पॉजिटिव में होता है, बस टूटने के लिए एनर्जी चाहिए, और हाइड्रेशन एंथैल्पी जनरली नेगेटिव में होता है बिकॉज बॉन्ड फॉर्म हुआ था. बॉन्ड फॉर्म हुआ था. So both चलो. can be equal also, right? both generally cannot be equal. जनरली थोड़ा कम ज्यादा होता ही है उसको, इसके लिए बहुत जीरो कभी देखने नहीं मिला है जनरली. Okay. Enthalpy of chemical reaction. Standard सपोज ये रिएक्शन है, अभी यार केमिकल एंथैल्पी पे आ गए अपन. हाँ, कौन से एंथैल्पी पे आ गए शहबाज? स्टैंडर्ड एंथैल्पी. स्टैंडर्ड एंथैल्पी. ये कोई भी केमिकल रिएक्शन में बोलो, कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो चेंज ऑफ एनर्जी होगी उसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलेंगे. कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव. पॉजिटिव जब कभी आएगा जब भी रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, राइट? ओए बोलना भाई, आता है ये सब, किया हुआ है हाँ सर याद है. क्या? पहले तो बोले व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. स्टाइल मार रहे हो लोग, हमें पता है भाई. रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में जो चेंज ऑफ एनर्जी होगी उसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलेंगे, राइट? हाँ. ये आंसर पॉजिटिव आया मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन. नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक. ग्रेट. am I clear till now? रिलीज हो रहा है. हाँ सर. यस सर क्लियर. आगे बढ़ूं मैं ध्यान से. अभी ये लोग ने एक स्टाइल मारने के लिए एक वर्ड यूज किया. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब समझा ना? हाँ सर. क्या? जो भी एनर्जी चेंज हुआ केमिकल रिएक्शन में. ओके. अभी ये रिएक्शन में नेचर में हाइड्रोजन कौन से स्टेट में होता है? नेचर में हाइड्रोजन कौन से स्टेट में होता है? गैसियस स्टेट में होता है. बराबर. Hence, we say that standard state of hydrogen is gas. Come again. नेचर में क्या हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में होता है. इसके लिए हम लोग ने बोला स्टैंडर्ड स्टेट. स्टैंडर्ड स्टेट मतलब जो एक्चुअल स्टेट है उसका नेचर में वो.
ओके ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? गैस यस बराबर है, नेचर में ऑक्सीजन गैस में ही है ना। गैस हाँ और पानी 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 किसमें कौन से स्टेट में है? लिक्विड लिक्विड तो भाई जब भी आप एनर्जी चेंज कैलकुलेट कर रहे हो कर रहे तो भाई तीन बात है। पहली बात, ऑल स्पीशीज मस्ट बी इन स्टैंडर्ड स्टेट। जब भी आप एनर्जी चेंज कैलकुलेट कर रहे हो तभी सब स्पीशीज अपने कौन से, बोलना भाई, सब स्पीशीज अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होनी चाहिए। बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या मेंटेन करना है भाई? प्रेशर क्या, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक और 1 बार वॉट एवर, टेक्स्ट बुक में देख लेना। चलो 1 बार, ठीक है। ये कंडीशन मेंटेन की ना अगर आपने गौरव, क्या सर? ये कंडीशन मेंटेन की, रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रख के किया, रिएक्शन सराउंडिंग प्रेशर क्या रखा, 1 एटमॉस्फेरिक रखा, और सब लोग अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो रिएक्शन की चेंज ऑफ एनर्जी को ही स्टैंडर्ड चेंज इन एनर्जी, एनर्जी के बदले एंथैल्पी, स्टाइल मारने पड़ा ओंकार, तो रिएक्शन की चेंज ऑफ एनर्जी को क्या बोला, स्टैंडर्ड चेंज ऑफ एनर्जी, स्टैंडर्ड चेंज ऑफ एंथैल्पी। एंथैल्पी बात समझ में आ रही है? समझ रहे सर। तो बोलो सर, अगर अभी इधर स्टैंडर्ड के लिए ना ये लोग ने एक नॉट वर्ड डाल दिया, नॉट, नॉट मतलब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड वर्ड, नॉट वर्ड कब यूज करोगे, स्टैंडर्ड वर्ड कब यूज करोगे, जब भी तीन कंडीशन, जब भी सब स्पीशीज अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है, रिएक्शन का सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 है, प्रेशर 1 बार है, तभी सर। Am I right? यस सर Okay. So yeah, रिएक्शन की एंड चेंज ऑफ एनर्जी को स्टैंडर्ड चेंज ऑफ एनर्जी तभी बोला जाएगा, तब तीन कंडीशन मेंटेन हो, दैट्स इट। कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, नाउ यू नो दैट। पॉजिटिव कभी होगा जब भी रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, नेगेटिव कभी, नेगेटिव कभी जब भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक। क्लियर, ग्रेट। नाउ ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड एंथैल्पी। एक छोटा सा जो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन वो कर सकता हूं मैं 2 मिनट में, तो वो कर देता हूं पहले। चलो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। वाह, ठीक है, मैं लिख देता हूं। स्टाइल मारते। हाँ बेटा, तो बेटा ईदर रिएक्शन, कंबशन तो पता है ना, ऑक्सीजन के साथ जलाओ बस। कोई भी चीज 1 मोल लाओ, क्या क्या अच्छा लगता है आपको? कार्बन अच्छा लगता है, लेके आओ ना। कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट में लाना प्लीज, जो भी है वो स्टैंडर्ड स्टेट में लाना जरूरी है। क्यों? तो ही तो स्टैंडर्ड वर्ड यूज कर पाओगे। सर ये रिएक्शन में, ये रिएक्शन को हाँ कि ना, जनरली कंबशन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, ओनली सम ऑफ द एक्सेप्शंस आर देयर, उसको निगलेक्ट करो। क्या बोला मैं? कोई भी 1 मोल ऑफ कंपाउंड लाओ, उसको ऑक्सीजन के साथ जलाओ,
अभी जो चेंज ऑफ एनर्जी होगी उसको ही सर ये देखो ऐसे नॉर्मल लिखना ना तो अच्छा नहीं लगा सबको, ऐसे स्टाइल में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, नेगेटिव रहेगी। वैल्यू दोनों की सेम ही है यार, स्टाइल में लिखा स्टाइल, यू नो, यस और नो। Yes, sir. What is definition of standard enthalpy of combustion? Come on. 1 mole of any species burned with स्टाइल में oxygen. बेटा, स्टाइल में the Time आ जाएगा। standard enthalpy of combustion style में is defined as बोल रहा था वो। when 1 mole of species in its standard state, क्या स्टाइल वापस, standard enthalpy of combustion is defined as when 1 mole of species in its standard state burns completely With oxygen. obviously oxygen, Obviously. then change in enthalpy is called as, आगे का फालतू में लगाया बेटा ये आपने से चलेगा अभी, क्या हुआ, आप सही बोल रहे थे बेटा, बोलो वही ये बोल रहे थे ना क्या? नहीं हो रहा था बस कम स्टाइल में। अच्छा अच्छा, so when 1 mole of species in its standard state burned completely with oxygen, then the change of enthalpy is called as Standard enthalpy of combustion. okay guys, इतना बराबर बैठा दिमाग में। बैठा। अभी Yes. देखो ऐसा है ना, न्यूमेरिकल में लोग स्टाइल मारेंगे, अच्छा। ऐसे दिया आपको एंट्रेंस में भी, तो आपको इक्वेशन बनाने को जमना चाहिए। एंथैल्पी क्या लिखा है, ऊपर से नीचे पढ़ने, कभी भी नॉट मतलब स्टैंडर्ड, एच Standard, मतलब एंथैल्पी, सी मतलब कंबशन Combustion, okay. ऑफ मीथेन, मीथेन मतलब 1 मोल ऑफ मीथेन को लाना है, और O2 के साथ जलाना है। ऑक्सीजन की कुछ कमी नहीं है, कुछ भी। कार्बन कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली जलेगा तो क्या बनेगा, डाइऑक्साइड। बोल, और यस OH2. स्टैंडर्ड स्टेट, प्लीज मेंटेन स्टैंडर्ड स्टेट, सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी, ओके। सो 2 और 2 4 ऑक्सीजन। मैं क्लियर? या क्लियर। सो इक्वेशन भी बनाने जम गया आपको? हाँ ये तो जम गया। अरे तो मतलब देखो ध्यान ना, ये रिएक्शन को मैं कभी भी याद रखना 2 तरीके से लिख सकता हूँ। एक नॉर्मल तरीका, कम स्टाइल वाला, आप लोग का तरीका, क्या? बात समझा? इसमें से पर मोल वगैरह नहीं लिखा जाएगा, कभी भी याद रखना। कम स्टाइल वाला तरीका में बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में मोल्स, इसके लिए पर मोल नहीं लिखता। बट स्टाइल मारता हूँ अभी, थोड़ी लास्ट बार स्टाइल मारता है क्या, ये क्लियर कट 1 मोल मीथेन ना आए, कंबशन किया उसका 1 मोल ऑफ मीथेन का, इसके लिए यूनिट में पर मोल लिखा। समझा? समझा। तो 2 तरीके से लिख सकते हैं, समझा रिएक्शन को, मतलब चेंज ऑफ एनर्जी को 2 स्टाइल में, ठीक है? हाँ कि ना? हाँ। गाइस, सो हियर विल स्टॉप टुडे। खुदा हाफिज बोलने का टाइम आ चुका है। शब्बा खैर, अब्बा खैर, बाय सर। अनुपम खैर, सतर्क रहिए और अनुपम सावधान रहिए। सावधान रहिए। यस, बाय। और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 17। सावधान इंडिया। देखते रहिए केमिस्ट्री के लेक्चर्स, बने रहिए हमारे साथ। फिर लौटते हैं 6 बजे नए सब्जेक्ट के साथ। 6 बजे नेक्स्ट वीक।
नेक्स्ट वीक। ओके, चलो बाय। बाय सर।